Good morning, friends, and welcome for Nifty Analysis from SharesTradingSchool.com. Today, 27th January 2017. Uh, Nifty daily chart and weekly chart analysis, which we have done in the past, we had taken a target of 8,600 level. And to refer that, I will just go in a video which I had published on 12th Jan. I want you to just listen once again. Good morning, friends, and once again, welcome from SharesTradingSchool.com. Today, 12th January 2017. Nifty, last few reports we have been discussing about double bottom formation and their bullishness and resistance, which we are expecting at 8,300 level because of this trend line. If you have actually followed us this video, then you be knowing this importance of trend line because we have discussed that in past. Now, looking at this pattern, you can clearly see that we have reached this trend line and proper formation of double bottom is established. Now, since major resistance level of trend line and moving averages 100 EMA, everything has been actually breached. But looking at the pattern, if you see 100 EMA, as far as target is concerned, we will see this level. So technically target comes as 8,664 around that level. But it will not straight go and achieve that in one direction. It may happen that since it's a overbought at this moment, so it should take a correction over here and once again come back to 50 or 20 EMA. But looking into this, even a 20 EMA bridge, then also can see this level. I think the importance of this level you can understand when I'll increase the time frame. I'll just quickly change this time frame to 4 hours so that all those nuisance and fluctuations will reduce. If you look at this level, now you can understand. So we have said that market is overbought. We have talked about target of 8,600 level, 8,664 probably, and after that we have even said that market will not go straight and achieve it. It will correct. So I'll take you to scenario on this 11th Jan morning, rather 12th Jan morning till 11th. We had scenario like this, which you can see. If I'll show you again, this was a chart, so you can see this almost same chart, and we are tracking on it. After that, we said that it should go further down because of correction. The target is 8,600 to 8,664. Correction to 20 EMA will happen, and if you see this chart, I'll just proceed with tick by tick on hourly chart. You can see that market afterward on 13th started correcting, and then it has tested a support at 20 EMA, then tested a support on next day, but that support breach. Again, third attempt, many attempt actually market did after that, and if you see the trend in this scenario was actually showing us a higher highs but higher bottom, but actually the angle of trend is hardly 30-35 degree, and that shows that the commitment of bulls was not there, and then 20 once again breached, and then as we have said in that video that 50 EMA once 20 breach, likely is that 20 50 EMA and then 100 EMA market had tested. Around that level we have formed a double bottom formation, rather rising bottom formation. This is Adam and Eve formation has been formed on almost 20 around 20 to 22nd, and then market started marching. So when market is overbought, after that market starts actually slanting. जब market 70 के ऊपर गया था अर्ली चार्ट में, तो ये इसने एंगल जो ये बनाया था एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये करेक्शन दे गया, 100 के आसपास इसने सपोर्ट ले लिया, एंड देन एक्चुअली रियल ट्रेंड हमने देखा, और अभी हम लोग 8,600 के पास आके रुके हैं जो हमारे लिए टारगेट था. सो अगर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट अभी ऑलमोस्ट अचीव हुआ है, करंट सिनेरियो में अगर हम आरएसआई को देखते हैं वापस एक बार, तो आरएसआई आपको ओवरबॉट कंडीशन में दिख रहा है. सो चांसेस है कि इस लेवल पे मार्केट करेक्शन लेना शुरू करे. आर्ली चार्ट में अभी तक कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे, लेकिन आज शायद मार्केट ओपन होते टाइम ये दिखेंगे. चांसेस है
625 630 का जो टारगेट है उस यानी 8650 मैक्स टू मैक्स वहां तक जाएगा। लेकिन ये लेवल है जहां पे अभी लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे। आरएसआई ने अभी तक लोअर हाइज फॉर्मेशन दिया नहीं है, लेकिन शायद आज वो दिन होगा जहां पे ये देगा। सिम्टम्स फिलहाल ओवरबॉट कंडीशन के होने के बाद करेक्शन एक्सपेक्ट करने वाले हैं, और यहां से हम अगर अभी साइडवेज मार्केट टू करेक्टिव फेज देख सकते हैं, ये मुझे लग रहा है। सो फिलहाल मार्केट का ट्रेंड भले ही बुलिश है, हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट मार्केट ने ऑलरेडी अचीव किया है ऑलमोस्ट, और इसके बाद अगर करेक्शन आता है तो ये करेक्शन इस तरह का साइडवेज करेक्शन रहेगा, या साइडवेज या इस तरह का थोड़ा सा डाउन ट्रेंड। सो ये लाएगा प्राइस को 20 के ईएमआई के पास, और शायद हम लोग 8500 की लेवल को रिटेस्ट करेंगे एज अ सपोर्ट। शायद ये 8500 का रिटेस्ट करना मार्केट के लिए जरूरी भी है, क्योंकि वहां पे स्ट्रांग सपोर्ट होगा। आगे हम लोग इसका टारगेट के लिए मैं थोड़ा सा एक्सटेंशन प्लॉट किया है। इसको अगर आप देखते तो ये ऑलमोस्ट एक चैनल फॉर्मेशन की तरह दिखता है, या फ्लैग फॉर्मेशन दिखता है। अगर आप इस हाई को इस हाई से जोड़ेंगे, और फिर अगर मैं इसको एक क्विकली नोट करके आपको जोड़ के दिखा देता हूं। अगर आप इन हाइस को जोड़ रहे हैं, मैं ये हाई से ये हाई जोड़ रहा हूं, फिर ये हाई जोड़ रहे, फिर ये हाई जोड़ रहे, फिर ये हाई जोड़ रहे। अगर आप इसको इसी तरह से जोड़ रहे हैं, सो आपको ये फ्लैग फॉर्मेशन दिखता है। ये फ्लैग फॉर्मेशन जनरली मार्केट के ट्रेंड में सेंटर में आता है, और इसके लिए यहाँ इस पॉइंट से ये बॉटम जो रहेगा, ये इसका एक पुल रहेगा इतना, और यहीं से आगे हम लोग उतना ही टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले पीरियड में हमारे लिए टारगेट जो बनता है, ये एक्सटेंशन प्लॉट करने के बाद 8894 का टारगेट है। अगेन ये तुरंत नहीं होने वाला, या वन गो में सीधा मार्केट ऐसा नहीं जाएगा। यहाँ पे जो लेवल्स है आप इसको नोट करें, 8677, 8760, ये 8600 कल अभी का जो 10 का लेवल है ऑलमोस्ट उस लेवल पे टच कर चुका है। सो ये वहां से करेक्ट लेगा। 50% की लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगी। सो यहाँ से ये साइडवेज होके वापिस 8545 इस लेवल पे आके ये सपोर्ट टेस्ट करे, और वहां से फिर कंसोलिडेट होके फिर ऊपर की तरफ जाए। सो मैं फिलहाल निफ्टी के लिए बुलिश हूं, लेकिन एक छोटा सा करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं 20 के ईएमए को सपोर्ट लेके, या उसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा के हमारा पोजीशन चालू रख सकते हैं। हर करेक्शन मुझे 20 के पास आने के बाद अगर सपोर्ट लेते हुए मुझे आर्ली चार्ट में बार दिखे, कोई भी स्ट्रांग बुलिश बार दिखे, तो आई एड फ्यू मोर लॉन्ग पोजीशन। मैं कुछ और लॉट बाय करूंगा जब निफ्टी 20 के पास आके मुझे स्ट्रांग बुलिश बार सिग्नल्स दे दे, और वॉल्यूम के साथ वो दे दे, तो मैं वहां पे और निफ्टी बाय करने के लिए ओपन रहूंगा। सो मार्केट बुलिश है, लेकिन करेक्शन एक्सपेक्टेड है। आने वाले पीरियड में हमारे लिए टारगेट 8894 का एक्सपेक्ट करना ये मुनासिब रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड कीप liking your this video, and please encourage us so that we can continue with it. In near future we will be discussing one chart at least in a week on weekly format. इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सो आने वाले पीरियड में हम वीकली वीडियो पब्लिश करेंगे, जिसमें हफ्ते में एक डिलीवरी पोजीशन के लिए स्टॉक डिस्कस करेंगे, प्रोवाइडेड आप हमें इस तरह से इंकरेज करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सो दैट इसका बेनिफिट सबको मिले। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।